Good morning, students. Myself Manoj Chotia. Welcome to you in biology's class. Today's our topic is dark reaction. Dark reaction. As you know, the mechanism of photosynthesis is divided in two parts: light reaction and dark reaction. In light reaction, formation of energy bond ATP and NADPH2, which is utilized in dark reaction. Light reactions happen in daytime in the grana of chloroplast, and dark reactions happens in stroma of chloroplast. The dark reaction does not require light. It utilizes ATP and NADPH2 molecules formed during light reaction and carbon fixation, that is using carbon of CO2 in formation of sugar. Using carbon in formation of sugar, the dark reaction takes place in stroma region. It was discovered by Kelvin and Benson in 1954. But there is some alternative pathway also present, so we can differentiate dark reaction into three parts: C3, C4 and CAM. Means whenever in some plants 3 carbon molecules compound is formed, or we can say first stable compound is of 3 carbon atom, then they are called C3 plant. And in which plants the C3 cycles occurs, that are called C3 plants. Those plants in which C4 cycles occur are called C4 plant, and C4 cycle is discovered by Hayes and Slake. So this is also called Hayes and Slake cycle. C3 cycle was discovered by Kelvin and Benson. So it is called C3 cycle. C3 cycle and Kelvin and Benson cycle, because it is discovered by Kelvin and Benson. And some of plants have CAM cycle, means crassulacean acid metabolism in crassulacean family. First of all, remember the C3 cycle was discovered in algae or unicellular algae, Chlorella and Syndesmus. यहां एक नंबर का क्वेश्चन बनता है कि इन विच plant C3 cycle was discovered. So you have to remember Chlorella and Syndesmus algae. Chlorella और Syndesmus algae में C3 cycle की डिस्कवरी हुई थी. ठीक है. इसके बाद में देखिए, मैंने बोर्ड के ऊपर C3 साइकिल बनाई हुई है, तो ये आपको अच्छे से रिमेंबर करनी है, इसको डिटेक्ट कर लेना. ये आपकी बुक में नहीं है, नॉट इवन इन बोर्ड्स बुक एंड नॉट इवन इन योर एडवाइजर बुक. सो प्लीज राइट डाउन दिस साइकिल clearly and remember it, because it is helpful in write down the reaction of C3 cycle. In C3 cycle there is 3 activities are happens: carboxylation, glycolytic reservoir and regeneration of RUBP. मैं आपको आसानी से ये साइकिल समझा रहा हूं. इस साइकिल में आपको इस प्रकार से लिख के इसको याद कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है. इसका रीजन क्या है, ये साइकिल अलग से मैंने आपके लिए बनाई है. इसका रीजन ये है कि इसमें आपको रिएक्शंस लिखने में एकदम आसानी रहेगी, रिएक्शंस आपको याद नहीं करनी पड़ेगी,
केवल ये साइकिल ही आपको याद करनी है, ठीक है। देखिए सबसे पहले दिस साइकिल इज स्टार्टिंग फ्रॉम राइबोलोज 5 फास्फेट। राइबोलोज 5 फास्फेट हैज 5 कार्बन मोलिक्यूल, ठीक है। इसमें कार्बन के मोलिक्यूल कितने हैं? 5 है, और टोटल मोलिक्यूल इसके कितने हैं? 6 है, ठीक है। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30 कार्बन अपने पास यहां है, ठीक है। राइबोलोज 5 फास्फेट एटीपी से रिएक्शन करके और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एटीपी तो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? राइबोलोज 1,5 डाई फास्फेट। राइबोलोज 1,5 डाई फास्फेट, राइबोलोज 1,5 डाई फास्फेट, और वी कैन से राइबोलोज बाइफास्फेट। अब देखिए यहां पर फिर एक नंबर का क्वेश्चन बनता है, इन C3 प्लांट्स और इन C3 साइकिल विच कंपाउंड इज रिसेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। डार्क रिएक्शन जो है अपनी वो क्या है? वो कार्बन फिक्सेशन की एक्टिविटी है। तो कार्बन फिक्सेशन होगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा? किसी भी कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेगा। तो विच कंपाउंड इज रिसेप्ट कार्बन डाइऑक्साइड? आंसर क्या हो गया अपना? राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट। राइबोलोज 1,5 डाइफास्फेट क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोस्फोग्लिसरिक अम्ल, PGA, फोस्फोग्लिसरिक अम्ल। तो यहां ये क्या था? एक 5 कार्बन मॉलिक्यूल था, 5 कार्बन, और इसके मॉलिक्यूल कितने थे? 6। कितने हो गए टोटल कार्बन? 30। 5 मल्टीप्लाई बाय 6। अब 6 CO2, टोटल कार्बन कितने हो गए? 30 प्लस 6 36। और ये जो कंपाउंड बना वो क्या था? 3 कार्बन एटम का 3PGA, फोस्फोग्लिसरिक अम्ल। एक और क्वेश्चन बन गया यहाँ पे 1 मार्क का, कि द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड formed in C3 cycle is PGA and it is of 3 carbon atoms compound। तो अपने पास कार्बन एटम हो गए 36, तो इसके कितने? 12 मोल अपने को प्राप्त होंगे। वी ऑब्टेन 12 मोल ऑफ फोस्फोग्लिसरिक अम्ल। 12 इंटू 3 36, 5 इंटू 6 36 कार्बन मोलिक्यूल का ध्यान में रखना अपने को, ठीक है। अब ये फोस्फोग्लिसरिक अम्ल फिर क्या करेगा? एटीपी से रिएक्शन करेगा, और एटीपी से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड में। 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा एक चीज और ध्यान में रखनी है अपने को, ईच स्टेप में क्या होगा? एक एंजाइम काम में आएगा। तो मैं आपको बता देता हूं, व्हेनेवर एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी, एडीपी convert into ATP, you can write enzyme kinase. Whenever NADP, FAD, flavin adenine dinucleotide, NAD, nicotinamide adenine dinucleotide, NADP, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate are convert into its reduced form means H2. NAD convert into NADH2, NADP convert into NADPH2, FAD convert into FADH2, or FADH2 convert into FAD, NADPH2 convert into NADP, NADPH2 convert into NADP, NADH2 convert into NAD. The enzyme utilized is dehydrogenase. Remember it. Okay. Now फोस्फोग्लिसरिक एसिड एटीपी से क्रिया करके 1,3 डाइफोस्फोग्लिसरिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, तो एंजाइम क्या आ जाएगा? काइनेज। अब 1,3 डाई PGA या 1,3 डाई फोस्फोग्लिसरिक एसिड जो NADH2 फॉर्मेशन हुआ था कहां? लाइट रिएक्शन में, उसको यूटिलाइज करके क्या बना लेगा? 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड, 3PGAL, या यो कहते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। नाउ दिस
3-phosphoglyceraldehyde is converted into so many compounds, but two molecules means one molecule is 3 carbon atom and 2 molecules means 6 carbon, and this convert into product. And what is the product of photosynthesis? ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट. तो 2 मोल क्या हो गए इसके, कन्वर्ट हो गए किसमें, उत्पाद में, और बाकी मोल्स जो हैं वो कंटिन्यूअसली कन्वर्ट होते जाएंगे, लास्ट में किसमें आ जाएंगे, राइबोलोज 5 फास्फेट, और ये फिर दोबारा से क्या करेंगे, CO2 को एक्सेप्ट करके फिर ग्लूकोज बनाते रहेंगे. तो ये साइकिल चलता रहेगा. अब कैसे चलता है वो आप देखिए. DHAP इज द आइसोमर ऑफ PgAl. तो 2 मोल किस में कन्वर्ट हो गए इसके, DHAP में, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट. डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट में 2 मोल कन्वर्ट हो गए और 2 मोल PgAl के. तो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट क्या हुआ, 3 कार्बन एटम है, और PgAl में क्या है, 3 कार्बन एटम है. तो ये 2 मोल इसके कन्वर्ट हुए DHAP में और 2 मोल 3PgAl के. ये दोनों क्रिया करके किसका फॉर्मेशन करेंगे, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट. अब देखिए जो मैं आपको बता रहा था कि हाउ टू राइट रिएक्शन, तो रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सारे स्टेप्स की अपने को रिएक्शन लिखनी है. यहां मैं आपको बता रहा हूं PgAl प्लस DHAP एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो गए, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट. एक रिएक्शन होगी. नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगी, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट कन्वर्ट इनटू फ्रक्टोज 6 फास्फेट. एंजाइम क्या हो गया, फोस्फेटेज. इस टाइप से अपने को पूरी साइकिल की रिएक्शन लिखनी है. तो अपनी बुक में रिएक्शन दी हुई है, ठीक है. अब पर्टिकुलरली अगर अपन रिएक्शन को याद करना चाहेंगे तो नहीं होगी, और इस साइकिल को देख देख के अपन सारी रिएक्शन इजीली लिख सकते हैं. इसलिए मैंने आपको ये साइकिल बनाने के लिए कहा है, ठीक है. तो अब क्या होगा, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट, PgAl और DHAP ने क्या किया, फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट का फॉर्मेशन किया, और फ्रक्टोज 1,6 डाइफास्फेट फोस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट होगी किसमें, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में. अब ये फ्रक्टोज 6 फास्फेट फिर क्या करेगा, 2 मोल और आ जाएंगे किसके, PgAl के. देखिए 12 इंटू 3 2 2 2 2 2 2 12 मोल, ठीक है. अब इसने रिएक्शन किया किससे, फ्रक्टोज 6 फास्फेट पे. फ्रक्टोज में कितने कार्बन एटम है, 6, इसमें कितने, 3, 6 एंड 3 9. तो यहां फिर 2 कंपाउंड बनेंगे, इरिथ्रोज 4 फास्फेट, इसमें 4 कार्बन एटम है, जाइलुलोज 5 फास्फेट. हो गए 9, 6 और 3 ये थे 9, और ये 4 और 5 9. ये जाइलोज 5 फास्फेट फिर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, राइबोलोज 5 फास्फेट में. इरिथ्रोज 4 फास्फेट फिर 2 मोल क्या करेंगे, आइसोमरेज एंजाइम की प्रेजेंस में DHAP में कन्वर्ट होंगे. DHAP इरिथ्रोज 4 फास्फेट के साथ रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करेगा, सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफास्फेट. रिमेंबर व्हाट इज एस हियर, सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफास्फेट का फॉर्मेशन होगा किससे, इरिथ्रोज 4 फास्फेट एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट. कैसे लिख देंगे, वही आपको मैंने अभी जो रिएक्शन बताई, इरिथ्रोज 4 फास्फेट प्लस DHAP किसका फॉर्मेशन किया, सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफास्फेट एंजाइम एल्डोलेज. इस टाइप से अपन ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं. अब सेडोहेप्टुलोज 1,7 डाइफास्फेट किसके कन्वर्ट हुआ, फोस्फेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में कन्वर्ट हो गया सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट. ये क्या है, सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट. नाउ अगेन सेडोहेप्टुलोज 7 फास्फेट react with phosphoglyceraldehyde. Sedoheptulose 7 phosphate react with phosphoglyceraldehyde in presence of transketolase enzyme and perform or convert into ribose 5 phosphate and xylulose 5 phosphate. Sedoheptulose 7 phosphate plus PgAl react in presence of transketolase enzyme and make ribose 5 phosphate and xylulose
5-phosphate, and these are in the presence of isomerase enzyme further convert into ribulose 5-phosphate and this cycle goes away. तो ये अपना था C3 cycle. ठीक है. I hope that you can understand. If you can't, then you have to remember and ask me any question in your comment. मैंने देखा है अभी तक आप लोगों ने एक भी कमेंट नहीं किया, इसका मतलब आप लोगों को सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ रहा है. ठीक है. कुछ भी समझ में नहीं आए, you can ask me on my personal number or you can comment on my video so that I can improve my teaching, online teaching. Thank you for today. Tomorrow we will study C4 cycle, chem cycle, photorespiration and factor affecting photosynthesis. Thank you.